Dear students, today we are going to start your third lecture of the third chapter, that is atoms and molecule. Now atoms and molecule, in the previous previous lecture, we learned about atomic mass unit. Now how you obtain the atomic mass unit? ठीक है, one atomic mass unit is equal to 1/12 the mass of the carbon atom. Understand? Means कार्बन के 12वें हिस्से को रेफरेंस मान के एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट की गई है. अंडरस्टैंड? एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट द atomic mass of some important elements. Now today students, we are going to start with another topic, that is what are molecules. What are molecules? Now what are molecules? Molecules are basically formed by the combination of the two or more atoms, understand, which are bonded by chemical bond, understand. And molecule exist as a independent existence. We can feel, we can touch, and we can also molecules को हम महसूस कर सकते हैं. ठीक है. So when two or more atoms combine together, then it form the molecules. Understand? For example, oxygen. When oxygen again combine with itself, then it form O2, like Cl2, chlorine. It is also a molecule. Understand? F2, fluorine. ठीक है. तो इसको आप बोलेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल. Understand? So on molecules can be on the basis of their combining capacity, molecules classified into two category: molecules of elements and molecules of compound. सबसे पहले बेटा molecules क्या होते हैं? Molecules are formed by the two or more atoms which are chemically bonded together. Understand? Which are bonded chemically, that form the मॉलिक्यूल. एंड मॉलिक्यूल इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल, एक स्टेबल फॉर्म होती है किसी भी एटम की. ठीक है. व्हेन टू और मोर एटम्स कंबाइन टुगेदर, ठीक है, तो वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करती है, दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है. अंडरस्टैंड? सो मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी: मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स and second one is molecules of compound. Molecules can be classified into two categories: molecules of elements and molecules of compound. Now molecules of elements are formed by the same type of the atoms. जो same type of atoms से बनते हैं, that are known as molecules of elements. And molecules of compound are those which are formed by two or more different atoms which are bonded which are chemically bonded together. For example, molecules of elements formed by combining two or more atoms of the same of two or more of the same atom. तो ये formed by the combination of two or more same elements. अंडरस्टैंड बेटा? नो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल O2, H2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हीलियम मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल, O3 molecule, ozone molecule. So these are the some examples of molecules of elements like N2, ठीक है, etc.
These are molecules of elements. So kindly note down these important formula of the elements, molecules of elements, जो मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को नोट डाउन कीजिए. Now, dear students, look at these important formula of the molecules of elements. So, molecule of elements formed by the combination of two or more same atom or element. ठीक है. इसके अलावा बेटा इनको फिर से क्लासिफाई किया गया है. Molecules of elements can be classified into अगर if molecules of elements is formed by the same type of the atom, एक एटम से बनते हैं, only form of single element, then these are called homoatomic molecule. अंडरस्टैंड. अब इनको भी आगे कैटेगराइज किया गया. मैंने पहले यहाँ हीलियम 2 लिख दिया था, लेकिन हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है. ये बाकी डायटोमिक या ट्राइटोमिक की तरह एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इसको मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, फिर डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल. अंडरस्टैंड. सो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल है हीलियम, जितने भी जीरो ग्रुप के मेंबर हैं, नियोन, Na सिंबल, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सेट्रा. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ होमो मीन होता है बेटा सेम, सिंगल एलिमेंट. ठीक है. है सभी ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं. ठीक है. तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्दर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटम्स, होमोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक और पॉलीटॉमिक. तो डायएटॉमिक में एग्जांपल आएंगे व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. सेम एलिमेंट के टू एटम के कंबाइन करने के बाद जो बनेंगे उनको बोलेंगे डायएटॉमिक. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये स्टेबल होता है. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, अंडरस्टैंड, क्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, आयोडीन मॉलिक्यूल. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. ट्राइएटॉमिक में आएंगे बेटा एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल आएगा ओजोन O3. अंडरस्टैंड. टेट्राएटॉमिक में एग्जांपल phosphorus, because phosphorus exists as a tetraatomic molecule, P4 molecule. If you want to draw the structure of phosphorus, then इस स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है. ठीक है. phosphorus and polyatomic molecule में इसके एग्जांपल आएंगे. फॉर एग्जांपल S6 and S8 molecule. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा. मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर एटम्स. ठीक है. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी. मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, molecules of element are those which are formed by the combination of the same type of the atoms. For example, these are classified into four categories: homoatomic, diatomic, triatomic, tetraatomic and polyatomic molecules. ठीक है. तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी है इसकी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड.
मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट या डिफरेंट एटम्स। अंडरस्टैंड? तो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो भी फॉर्म होते हैं दैट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर एलिमेंट्स। ठीक है, सो इसमें आपने ध्यान रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटल्स के ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल, molecules of compound formed by the combination of two or more different elements। ठीक है, फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल, HCl मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, या फिर CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, सो दीज एलिमेंट्स आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बने हैं। ठीक है, अब इनको होमोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक की तरह कैटेगराइज नहीं किए गए। जस्ट आपने याद रखना है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है दैट आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू और मोर different elements या different atoms। So kindly note down these important formulas। So dear student, जो molecules of compound है H2O, अगर आपसे पूछा जाए कि simplest ratio निकालिए इसकी, what is the ratio of hydrogen and oxygen in this, तो you know that कि हाइड्रोजन यहाँ पर दो हैं और ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल, दो एटम से बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। अंडरस्टैंड? सो रेशियो बाय मास, वन, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 8। अंडरस्टैंड? 8 इसका एटॉमिक रेशियो बाय मास, तो इसका 1 और इसका कितना होता है? 8। ठीक है, नाउ एटॉमिक मास ये है रेशियो बाय मास। वैसे इसका 16 होता है, इसका 1 ही होता है, तो इसका 1 आएगा, इसका 16 आएगा। अंडरस्टैंड? नाउ मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो, मास रेशियो अपॉन एटॉमिक रेशियो, तो आएगा बेटा 1/1 इज इक्वल टू 1 एंड तो मास रेशियो कितनी है बेटा इसकी? 8/16। इट मीन्स दैट अगर हाइड्रोजन का एक एटम है तो उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन का कितना एटम है? हाफ। इफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एक एटम है तो उसका कंपैरिजन में हाइड्रोजन कितने? 2। ठीक है, तो इनकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 2:1। आप ये तरीका है। रेशियो बाय मास आप समझ रहे हो बेटा? रेशियो बाय मास का मीनिंग है, देखिए ये H2O है, इसका एटॉमिक मास होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, तो इसकी रेशियो आ रही है आपको 2:16 या फिर 1:8। ठीक है, ये रेशियो आ रही है इसकी। ठीक है, रेशियो बाय मास, तो दैट्स व्हाई आई राइट हियर 1 एंड 8। ठीक है, अगर हाइड्रोजन 1 है तो उसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन कितना है? 8। ठीक है, ये ओरिजिनल इनका एटॉमिक मास है 116, तो इनकी इफ हाइड्रोजन इज 1 देन ऑक्सीजन उसके कंपैरिजन में कितना है? हाफ। ठीक है, तो उसकी रेशियो आ रही है 2:1। ठीक है, टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सिमिलरली आप NH3 की निकाल सकते हैं बेटा, NH3 की, तो ये आएगी 14:3।
Similarly, carbon dioxide CO2, what is the atomic mass of carbon? 12, ठीक है, 12 एटॉमिक मास होता है इसका। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा? 16, ठीक है। तो यार ये आपकी 12:16, और इसको आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना चाहेंगे। इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 4 देन इट कम्स टू बी 3:8, ठीक है। अगर आप 12 को 4 से और 16 को 4 से करेंगे तो आएगी आपकी 4, ठीक है, 3:4। लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन सिर्फ O2 है तो ये 32 आ जाएगा, ठीक है, 32। तो उसको आप 8 से तो ये आएगी 8, तो ये आएगी बेटा 32, तो आएगी 8। तो 3:8 है कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। अंडरस्टैंड? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट वेरी क्लियरली। रेफर टू योर एनसीईआरटी एक्टिव जो टेबल नंबर 3.2 एंड 3.3 एंड 3.4 टेबल्स को देखिए, ठीक है। नो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट concept is what are ions? Very important. What are ions? Now ions बेटा कैसे बनते हैं? Ions are formed by the either the loss or gain of electron। यह लॉस करके बनेंगे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके आयंस की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। सो दैट आर कॉल्ड आयंस। तो आयंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए, एक होता है कैटायंस and second one is anions। So cations are formed by loss of electrons and anions are formed by gain of electrons, ठीक है। So what are ions? So ion are formed by the either it is of two type, cations and anion। It is formed by either loss of electron or gain of electron। Mostly जो cations होते हैं formed by the cations formed by metals। metals के द्वारा cation होते हैं and anions are formed by non-metals। And there is a bond between metal and non-metal, that bond is called ionic bond। अगर if that bond is formed by between the metal and non-metal, then it form the simple ionic molecule। Understand? So combination of metal and non-metal form a stable bond। ये एक तरह से क्या बनाते हैं, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। when metals and cation and anions, when metals and non-metal, the bond formed between metals and non-metal either by losing or gaining electron is called polyatomic molecules। उनको बोलते हैं polyatomic molecules। अंडरस्टैंड? इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस, ठीक है, कैल्शियम प्लस, पोटाशियम प्लस, हाइड्रोजन प्लस। सो बेसिकली cations are formed by the formed by the loss of electron, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लॉस करके जो बनते हैं that are cations। and anions are formed by the gaining of electrons। for example chloride ion, for example chloride ions, iodide ions,
सल्फेट आयन SO4 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो दैट आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरियस अनायंस। So dear students, polyatomic molecules are the polyatomic molecule basically are the charged particles, ठीक है, charged species which are formed either by the gaining or losing electrons, ठीक है, formed by the cation and anion. These are called polyatomic ions, ठीक है। तो मैं आपको रेफर करूंगा NCERT टेबल 3.6, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। इस टेबल में, इन दिस टेबल ऑल दी वैलेंसी ऑफ कैटायंस एंड अनायंस आर गिवन, ठीक है। सो व्हाट आर वैलेंसी? वैलेंसी बेसिकली इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट which are formed by either losing or gaining electrons, that are called valency, ठीक है। तो learn table 3.6, very important table, and from this table you learn the various number of the cations and anions, उसमें आपको दिए गए हैं, और तभी आप राइट कर पाओगे, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला बाय दिस पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो कैसे आप उनको केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे? राइटिंग केमिकल फॉर्मूला वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखना है कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, राइट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, अंडरस्टैंड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम इज ए मेटल, ठीक है। सो कैल्शियम इज ए मेटल, उसका फॉर्मूला होता है, सबसे पहला स्टेप है राइट द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द गिवन आयंस, गिवन पॉलीटॉमिक आयंस। तो कैल्शियम का फॉर्मूला Ca, ऑक्साइड किससे बना बेटा? ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला आपने लिख दिया O, अंडरस्टैंड। ये है स्टेप 1, ठीक है। नाउ स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? above the each element write the valence, ठीक है, वैलेंसी उनकी राइट करेंगे आप, ठीक है। नाउ कैल्शियम की वैलेंसी बेटा कितनी होती है? +2 होती है, एंड इसकी कितनी होती है? -2 होती है, अंडरस्टैंड। या फिर इनके नीचे भी राइट कर सकते हैं इस तरह से, +2 एंड 2 माइनस या -2, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। सिंपली डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इट मींस दैट फॉर्मूला का आएगा Ca2 +2 -2, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, देन द फॉर्मूला सिंपल क्या बनेगा इसका? Ca2। ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपने फॉर्मूला राइट करना है तो प्लस और माइनस को इग्नोर करना है जस्ट, ठीक है। तो टेबल 3.6 को लर्न कीजिए और फिर उनको पहले आप जस्ट उनके सिंबल राइट करके, फिर उनकी वैलेंसी को राइट करके कैटायन और अनायन की, देन उनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। देन यू गॉट द केमिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, सोडियम ऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम ऑक्साइड। So sodium oxide formed by sodium and oxygen, and oxygen की वैलेंसी होती है -2 ऑलवेज, बिकॉज ऑक्सीजन फॉर्म द अनाइन। तो यहाँ पर आपने बेटा राइट करना है, सोडियम कैटायन है तो उसकी वैलेंसी होती है +1, इसकी वैलेंसी होती है -2 या 2 माइनस। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट मीन दैट इसका फॉर्मूला जो बनेगा क्या फॉर्मूला? Na2O, अंडरस्टैंड। मैंने आपको एक चीज बताई कि व्हेन यू राइट द एंटायर केमिकल फॉर्मूला काइंडली इग्नोर द प्लस एंड माइनस साइन, अंडरस्टैंड। सो इसका फॉर्मूला क्या बन गया? सोडियम Na2O। सिमिलरली मैग्नीशियम ऑक्साइड, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म बाय मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, अंडरस्टैंड। सो मैग्नीशियम की वैलेंसी +2, इसकी -2, क्रॉस मल्टीप्लाई
then it turns to be Mg. Understand? So kindly note down these important chemical formula of some important polyatomic ions. सो डे स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम? ए। ऑक्साइड को ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्साइड इज फॉर्म बाय ऑक्सीजन। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 एंड इसकी वैलेंसी होती है -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बेटा, एक आपको क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, ये पेज नंबर 39 तक मैंने आज आपको करवाया। पेज नंबर 39 एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एलिमेंट। जैसे ये एग्जांपल दी PO4 3 नेगेटिव। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे पॉजिटिव साइन दिया नेगेटिव साइन दिया, यू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ एटम्स। जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था एटॉमिसिटी आपने काउंट करनी है। एटॉमिसिटी, तो एटॉमिसिटी क्या होती है बेटा? एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स, ठीक है, इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स एटॉमिसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी पूछी जाए तो कितनी आएगी? 2। O3 की एटॉमिसिटी 3, ठीक है। इसलिए HCl की एटॉमिसिटी 2, क्योंकि 2 एटम से बना है, ठीक है। सिमिलरली और भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं। Cl2 कितनी आएगी इसकी? 2। S8 कितनी एटॉमिसिटी? 8। S6 6 एटॉमिसिटी। इसी तरह से हाउ मेनी एटम्स आर फॉर्म, हाउ मेनी एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल? पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ बेसिकली पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव और नेगेटिव से बने, ठीक है। तो इसकी एटॉमिसिटी आपने काउंट करनी है, तो कितनी आएगी? 1 फास्फोरस प्लस 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 एटॉमिसिटी। तो माइनस साइन, -3 -4 जितना भी लिखा उसको इग्नोर करना है, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, H2S मॉलिक्यूल, व्हाट इज द एटॉमिसिटी? 2 हाइड्रोजन प्लस 1 सल्फर इज इक्वल टू 3। अंडरस्टैंड? सो ये था एटॉमिसिटी का कंसेप्ट कि एटॉमिसिटी इज द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स इन ए मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड? सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। पेज नंबर 39 तक मैंने आज आपको करवाया। So kindly practice all the numerical based on these chemical formula, polyatomic ions and NCERT पेज नंबर 39 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं काइंडली उनको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट आपको इफ यू वांट टू बी मोर कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो मोल कंसेप्ट, तो काइंडली जो आज का लेक्चर है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मोल कंसेप्ट, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, मोल कंसेप्ट। सो बिफोर मोल कंसेप्ट आई होप ये आपको पॉलीटॉमिक आयंस, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, व्हाट आर हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।